Now, good morning, everyone. Good morning, everyone. Now, welcome to this. There is a batch which is very important. This batch is known as the QIP Quality Improvement Program in the Current Affairs. Through editorial and you and the Yojana, this batch is targeting towards conceptual analysis. What exactly is a subject, how the subject can work upon, and how you can develop the base for your answer writing. So two batches are moving. Number one hour, two newspaper session in which we are also doing the comprehensive analysis of the newspaper from 29th October onwards. But editorials and you always providing the insight about the points. Whether you are fresher or not, anytime you can start the preparation. So many people are having different type of problems. They are mailing me regularly. Some people are saying, sir, I am a very fresher, I am not knowing the terminologies, I am not knowing the words. So try to understand in this examination, the problem is that you people are coming from the different educational backgrounds, and this is a problem. When I came in this, that's a field, I came from a very, that's a not that much good university, Chaudhry Charan Singh University, Meerut. And my basic education was from Kendra Vidyalayas, where there was no much emphasis upon the English language. And when I entered in this field, my competition directly belongs to the people who belong to IITs, IIMs, Saint Xavier College, Lady Shri Ram College. And these people are having some innate advantages in the form of language, in the form of analytical skills, in the form of reading habits. And what we not did for the last 6 7 years, these people already completed. It doesn't mean that all the people from these colleges are smart or the intelligent, but the problem is the problem of अंडरस्टैंडिंग. तो मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ या ये कह रहा हूँ कि वो नीचे हैं वो ऊपर हैं या वो उनमें से कुछ कोई नहीं है. मैं यहाँ पर बेसिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि बचपन में किसी ने अच्छे से पढ़ाई करा और किसी ने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया. नाउ वन पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ बलिया इन उत्तर प्रदेश, and one person is from Kolkata or one person is from Hyderabad, Pune from the childhood days. And now he is having so much amount of understanding about the terminology of English. And when I am using the word spatial analysis, SPATIAL, or I am using the word paradigm shift, that person is not having the problem to understand. But another problem, in spite of understanding the concept, having the problem of understanding what is the paradigm word. So at that time, नो कोचिंग कैन हेल्प यू. जितना एस्पायर बेसिक से पढ़ाता है उतना तो कोई भी नहीं पढ़ाता है, इस बात को तो याद रखना. तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आफ्टर लर्निंग फ्रॉम द क्लासेस यू कैन डिवोट योर टाइम विद द डिक्शनरीज. ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी का मतलब यही था. तो व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 2005, आई डिडंट अंडरस्टैंड 70% ऑफ द टर्मिनोलॉजीज बिकॉज आई एम नॉट हैविंग द बेस. बट माय फ्रेंड हु आर फ्रॉम सम अदर कॉलेज, he understood 90% of the terminology, only 10% of the subject wise terminology he is not in the condition to understand. So here two people can help you, one is dictionary and one your teacher in the next class when you are asking your doubt. और यही कारण है कि हम इस फील्ड के अंदर बहुत सारे बच्चे इमोशनल हो जाते हैं कि देखो हम तैयारी कर रहे हैं, बन नहीं पा रहे. मुखर्जी नगर के बच्चे बन नहीं पा रहे. तो मुखर्जी नगर कोई गढ़ नहीं है, वहाँ के बच्चे बन नहीं पा रहे. वहाँ के बच्चे कुछ हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत पास्ट, बहुत रीजनल, कहते हैं ना फार अवे एरिया से आते हैं. तो वो 3 4 साल तक तो पढ़ाई को समझ ही नहीं पाते हैं. और जब 3 4 साल में उनकी पढ़ाई समझ में आनी शुरू होती है तब तक वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. कितने लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे हो? तो इस फील्ड के दो इंपॉर्टेंट चरण हैं, टू इंपॉर्टेंट लेवल है. पहला एक्सेप्टेंस, कि मेरा कंपटीशन अभी यूपीएससी में नहीं है. पहला मेरा कंपटीशन है जो इस फील्ड में यहाँ पर बच्चा है, दैट मीन्स हु इज ऑलरेडी गेव पीटी एंड मेंस एंड क्वालिफाइड इट. पहले मुझे उसके लेवल पे पहुंचना है. एंड नाउ माई कॉम्पिटिशन विल स्टार्ट फॉर यूपीएससी. और ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमारे माँ बाप हमें भेज देते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं और फिर हम यहाँ पर आके एक ब्लाइंड कंपटीशन में पड़ जाते हैं जिसमें सिर्फ बच्चा हैंड आउट उठाता है, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाता है और उसको बता देता है ये नोट्स कर लो, ये टेस्ट सीरीज कर लो, बन जाओगे. और वो जिंदगी भर पीटी के लिए स्ट्रगल करता है और उसके 6 के 6 पीटी फेल हो जाते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% बच्चा इस फील्ड में कभी पीटी ही पास नहीं कर पाता, क्योंकि वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि मुझे ये भी पढ़ना था. वो अपने आप को पहले ही एक IITN के या किसी सेंट जेवियर के लेवल पे मानता है जिसको सारी टर्मिनोलॉजी आती है और उससे वो ब्लाइंड कंपटीशन करता है. मैं ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने चीज़ों को सीखा, मुझे किसी टीचर ने नहीं सिखाया. अगर आज मुझे वर्ड पता है पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है, अगर आज मैं आपको स्पेशल एनालिसिस, एक्सप्लेन, सब्सटेंशिएट
करके चीज़ें सिखाता हूँ तो समझ लेना, सर इज़ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी बाय द नेम ऑफ मेरठ, देन गाजियाबाद, and sir education was also from a very small, there's a school where there was no dynamicity, लेकिन तब भी हमने उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करी बिकॉज वी डिवोटेड आवर टाइम विद द बुक्स विद द ओवरऑल एम्फोसिस कि हमें एक साल में अपने क्लास के बेस्ट बच्चे के लेवल पे पहुंचना है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम मेडिटोरियल यू पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ आती है तो इस फील्ड में एक बच्चा बात बोलता है कि आई एम अ फ्रेशर और नॉट, तो बात समझ लो कोई भी फ्रेशर नहीं है, सिरेश बैठा है क्लास कर रहा है, वो 3 साल मेंस दे चुका है, पीटी दे चुका है, और कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला भी इस क्लास को कर सकता है। ऑब्वियसली थोड़ी डिफिकल्टी आएगी तो आपको चैलेंज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। Why you are thinking कि everything will come through that's the mouth and that's the you will just digest it? तो always remember one thing कि जब हम ये बैच कर रहे हैं तो हम हर चीज़ का बेस पढ़ेंगे। If the editorial is coming regarding the language formula, this is a issue. This is not the general studies or your subject. It is not related to history, geography और the polity जिसके अंदर आपको बेस चाहिए। ये सब्जेक्ट ही अपने आप में एक टॉपिक है, और ये बैच के अंदर आई कैन टेल यू द इशू, आप इसको इशू वाइज लेंगे। तो हम लोग 3 स्टेप के अंदर लर्निंग करते हैं। पहला हम ये इशू वाइज पढ़ेंगे। व्हेन यू डेवलप्ड योर बेस इन 6 मंथ, जब आप मेरे साथ पूरा न्यूज़पेपर का बैच कर लोगे, एडिटोरियल कर लोगे और कुछ मॉड्यूल्स पीटी के कर लोगे, मैं तो कहता हूँ पूरा बच्चे को एक पूरा पीटी का मेंस मेरे साथ करना चाहिए। जो लोग मेरे साथ संजीव ने जुड़े, उन्हें पता चल गया सर का लेवल क्या है नॉलेज में, और वो रिग्रेट करने लगे कि हमने आपको पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो यहाँ पर डिसीजन लेना बनता है। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं पैसा भी बचा लूँ, कुछ चीज़ें नेट पर फ्री में कर लूँ, कुछ चीज़ें अपने आप कर लूँ और सीधा मेंस कर लूँ, तो आपकी प्रिपरेशन में गैप्स आएंगे। क्या आएंगे? गैप्स। और वो कभी फिल्ड अप नहीं होंगे। जैसे हमारे एक लड़की थी अंकिता अग्रवाल, दैट गर्ल बिलोंग टू 2018 बैच, शी कंप्लीटेड माई पीटी कम मेंस बट वाज गाइडेड बाय ब्लाइंड मूवमेंट, और वो सीधा करने लगी मेंस की प्रिपरेशन, and then she was disqualified in the PT. This year she qualified in the PT and just message me कि सर थैंक यू सो मच, आपने आज से 2 साल पहले मुझे एक बात बोला था कि यू आर हैविंग द पोटेंशियल बट यू आर नॉट वर्किंग अपॉन योर बेस इज वेरी वीक, जस्ट रिमेंबर ऑल द टर्मिनोलॉजीज बिकॉज पेपर डिमांडिंग दिस, एंड दिस ईयर शी क्वालिफाइड। तो मैं ही उसका टीचर रहा हूँ, उसने और कहीं दिमाग नहीं माना, लेकिन पहले उसने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन उस साल अगले साल उसने बात सुनी जब उसने ठोकर खाई। तो मैं ये नहीं चाहता दैट यू कैन लर्न आफ्टर 2 और 3 मिस्टेक्स, क्योंकि हाथ जलाने के बाद तो यार कोई भी सीख सकता है, तब तक हम बुजुर्ग हो जाते हैं, हमारी उतनी एनर्जी नहीं रहती, एंथुजियाज्म नहीं रहता है। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज ओनली वन दैट यू शुड फॉलो सम ऑफ द रूल्स। जब आप एनसीईआरटी के बैच को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, जब आप पीटी के अंदर मेरी बातों को अच्छे से दिमाग में डाल लोगे, ये 2 बैच कर लोगे, तब आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी। एंड व्हेन यू एंटर्ड इनटू नेक्स्ट सेशन, जब हम अगले सेशन से पढ़ाना शुरू करेंगे, यू कैन कैपेबल टू गिव एनी आंसर एनी टाइम, क्योंकि तब तक आपकी लर्निंग पूरी हो जाएगी। यू कैन कोरिलेट एनीथिंग विद एनीथिंग। अगर मैं आपसे उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, देन यू कैन लिंक विद आर्टिकल 21 आल्सो, you can link with article 47 48 also in the DPSP regarding the nutrition and the conservation of environment. You can also link with article 51A. You can also link with disaster management act. You can also link with decentralization of governance, क्योंकि तब तक आपको ये सब वर्ड समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस कहाँ पर यूज किया जाता है, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का क्या मतलब होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इटसेल्फ इज एग्जांपल ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नेशनल, सेंटर, स्टेट लेवल पर यूज किया जाता है, इवन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत को भी वक्त दिया जाता है। अब आप इतने जब स्ट्रांग हो जाओगे, अब पीटी में कोई भी क्वेश्चन आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया, पहला स्टेटमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट फंडिंग इज प्योरली कमिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये आज नहीं दे सकते हो आप जवाब। जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट मल्टीपल टाइम मेरे से करोगे, थ्रू दिस बैच, थ्रू योजना बैच, थ्रू माई पीटी का मेंस, थ्रू एनवायरनमेंट, तब आपको समझ में आ जाएगा यार सर ने बताया था डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी फंडिंग सेंटर से नहीं होती, क्योंकि ये सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है। और सर ने ये भी बताया था कि 15 फाइनेंस कमीशन में देयर इज अ डिफरेंट अलॉटमेंट रिगार्डिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स रिगार्डिंग मिटिगेशन एंड दिस ग्रांट। तो आप ये स्टेटमेंट गलत कर दोगे ऐसा सोच के, एब्सोल्यूट आपको भी नहीं पता, लेकिन आप लिंक निकालोगे कि भाई पंचायत की फंडिंग कहीं और से आती है, डिस्ट्रिक्ट की, और एडप्टेशन फंड अलग है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। आप समझे क्या समझदारी चाहिए। अब आप पीटी के अंदर 100 मार्क्स ला सकते हो, अब आपका पीटी निकलेगा। तो इस एग्जाम के अंदर हमें समझाने वाला ही कोई नहीं है प्यार से,
हम सब अपनी इंसर्ट पर ले लेते हैं कि यार हमने सीधा बाजीराम ज्वाइन कर लिया या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया एंड वी आर ग्रेजुएट, अब हम सीधा आईएएस बन सकते हैं। नहीं यार, क्या सारे लोग वहां बन जाते हैं? तो पहले हर आदमी को समझो यार, घर में 5 बच्चे हैं, सिबलिंग है, सब एक ही माँ बाप की औलाद है, लेकिन सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं है। कोई किचन में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, और सब अपने अपनी काबिलियत के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक होमोजीनियस फील्ड चुनते हैं, होमोजीनियस मतलब जहाँ सब एक लेवल पर हैं, तो पहले हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के लेवल पे आना पड़ता है, और फिर कॉम्पिटिटर के लेवल के बाद वी शुड कॉम्पीट विद आवर ओन सेल्फ कि हमें हर चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और फिर हमें यूपीएससी के डिमांड पर तैयारी करनी पड़ती है। ये नहीं हमें क्या अच्छा लग रहा है, बच्चा क्या तैयारी करता है, हमें क्या अच्छा लग रहा है। अभी राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, पेपर नंबर 3 हुआ आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन का। I crafted the paper as for UPSC. Aspire is the only institution who crafted the mains paper on the line of UPSC. मोहित, पेपर 3 सब पेपर मजेदार थे? पेपर लिख रहे हो ना? तो मैंने पेपर चेक किए। एक लड़की का मेरे पास पेपर आया एंड शी इज दैट्स अ प्रोफेशन अ वेरी गुड डॉक्टर, क्लियर। अब उसका जब मैंने पेपर चेक किया, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, इन द रिसेंट इंसिडेंट ऑफ गलवान वैली, what exactly is the role of neighbors and how India can improve the situation by strengthening their overall relation with the neighbors as well as discuss the strategy। ये क्वेश्चन पूछा मैंने। Now when I asked this question, उस बच्चे ने पूरा इंडिया चाइना लिख दिया। What are the issue between India China, how to control the issue between India China and how we can improve our ties with Indo China। अब इंडो चाइना का कोई ना था, ये तो पूछा कि हम how we can use our neighbors to control the China। उसने इंडिया चाइना लिख दिया क्योंकि उसको वही आता था। फिर उसको किसी ने बताया कि जो भी क्वेश्चन होता है उसकी हेडिंग डाल देते हैं, तो उसने लिखने से पहले ही पूरे पेज में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर 4 हेडिंग ठोक दी। पहली हेडिंग ठोल दी बॉर्डर इश्यू, दूसरी हेडिंग ठोक दी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, तीसरी छोड़ दी इंडिया चाइना हाउ टू इंप्रूव द टाइज एंड वे फॉरवर्ड, और सबको बक्से में बंद कर दिया। अब उसे फिलअप करने लगी, किसी में 2 पॉइंट लिख दिए, फिर गैप, फिर 3 पॉइंट लिख दे, फिर गैप, फिर। अब बताओ क्या करोगे? अब मैं मुंह से बोल सकता हूँ यार जिसने स्ट्रेटेजी बता रखी, लेकिन मैं क्यों बताऊं? लोग कहेंगे जी सर क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन ये कोई मेथड कोई ना हो यार। आप आंसर लिख रहे हो, आपने पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स बना लिए, 1 2 3 4, और ये किसी टॉपर ने भी बोल रखे, उसने भी, अरे यार ये उसने मेथड डिवाइस किया होगा, उसको 5 पॉइंट पता होंगे, उसको पता होगा मैं गैप भर दूंगा। लेकिन एक आदमी को बनने की जल्दी है क्योंकि उसके नाम के पीछे डॉक्टर लगा हुआ है, और उसके माँ बाप ने बोल रखा है तू आज तक जिंदगी में फेल नहीं हुआ, तो यहां भी नहीं हो सकता, तू बन जा। अब उस बच्चे को कंटेंट नहीं पता, उसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन वो धबाधब इन चीजों को कर रहे हैं। ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा, लास्ट ईयर को चेंज कर दिया कि इन द लास्ट सो मेनी इयर्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप हैज बीन इंप्रूव्ड, हाउ फार चाइना इज अ कॉमन बेस इन द टाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सब्सटेंशिएट। लास्ट ईयर जापान की कंडीशन में पूछा था कि हाउ जापान एंड इंडिया टाइज हैज बीन इंप्रूविंग बिकॉज ऑफ द चाइना फैक्टर। तो इसी तरह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टाइज बताना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइना फैक्टर। अब उसने 3-4 चीजें जो पढ़ रखी थी वही सेम बनाया, हर क्वेश्चन में सेम 1 2 3 4, इंट्रोडक्शन, दिस एंड कंक्लूजन, और उसके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स। तो व्हेन वी आर अडॉप्टिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, दिस इज द ब्लाइंड स्ट्रेटजी, एग्जामिनर समझ जाता है और आप इसे छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि वो आपके दिमाग में इतनी बस जाती हैं चीजें कि यू आर नॉट इन अ कंडीशन टू इंप्रूव। पहले तो पीटी नहीं निकल रहा, फिर आप मेंस के लिए भी गड्ढा खोद रहे हो, क्योंकि यू आर गाइडिंग बाय द प्रोटोटाइप, दैट्स द लर्निंग। इसलिए मैंने डेली न्यूज़पेपर, डेली आंसर राइटिंग का सेक्शन ऑन किया। सैटरडे को हमने 4-5 क्वेश्चन अपलोड किए अपनी वेबसाइट पर। कितने लोगों ने लिखे, नहीं लिखे तो लिख लेना, क्योंकि कल नहीं तो खींचेगी। और एक बात समझ लेना, सजा दूंगा आधे घंटे तक, कम से कम मुर्गा बना दूंगा वहीं पर जहां पर हो, और बनना पड़ेगा, वरना क्लास कैंसिल तुम्हारी। तो उन क्वेश्चनों को लिखना सीखो। जब तक आंसर राइटिंग नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा। अभी तो आंसर राइटिंग करोगे नहीं, आप लोग ये क्यों सोचते हो कि पहले दिन परफेक्ट करोगे? जब 6 महीने लिखना शुरू करोगे तब बनेगा कि हाँ मैं लिख पा रहा हूं। इंप्रूवमेंट उसके बाद आएगा। वी कैन डू द इंप्रूवमेंट आफ्टर 6 मंथ। पहले तो हमें सिर्फ 1 पेज लिखना आना चाहिए कि हम कुछ लिख तो पा रहे हैं, कुछ सोच तो पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको 4 क्वेश्चन उस दिन दिए कि इज ओनली एजुकेशन इज अ टूल टू एम्पावर द वुमेन इफ नॉट जस्टिफाई। तो अब यहां पर आपकी खुद की थिंकिंग लगेगी, क्या एजुकेशन अकेला टूल है? हिंदी में बना लिया करो, क्या एजुकेशन अकेला टूल है वुमेन को एम्पावर्ड करने का? जस्टिफाई करो। तो यहाँ दो पक्ष देने हैं, पास से लेकर प्रेजेंट तक, कि एजुकेशन की वजह से वुमेन में कितना इंप्रूवमेंट आया। लेकिन सिर्फ एजुकेशन नहीं है, बिहेवियर ऑफ सोसाइटी भी है, लेजिस्लेशन भी, सब कुछ है। लेकिन ये सब चीजें इनडायरेक्टली एजुकेशन पे बेस्ड है।
अगर हम अच्छे से एजुकेशन देंगे, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, तो हम लोगों का एटीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। ये मुझे आंसर चाहिए आपका। अब इसके लिए कौन सी बुक है? तो इसके लिए करंट, पास्ट, योर ओन पर्सनैलिटी, तीनों चीजें मिलके काम करेंगी और तब आप एक अच्छा आंसर लिखोगे। तो एक ब्लाइंड रेस चल गई है नेट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, हम आंसर दे रहे हैं, आप लिखिए, उसमें बच्चे ही कमेंट देते हैं, कोई टीचर नहीं देता है। तो एस्पायर एक पहला पोर्टल होगा भारत के अंदर जिसमें डायरेक्टर आपके आंसर को इवेलुएट करके आपको बताएगा। और हमने अपनी वेबसाइट पे इतना तक का मॉड्यूल बनाया है कि मैं हर आंसर के ऊपर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा जिसे आप सुन सकते हैं, ताकि मेरे पास लिखने का टाइम नहीं, लेकिन मैं मुंह से बता सकता हूं 3 पॉइंट, बेटा आपके आंसर में दिक्कत है। अब बताओ इससे ज्यादा क्या मदद करूं? इससे ज्यादा कोई इंसान आपकी क्या मदद कर सकता है? बस इतना आप बताओ। आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम 2005, आई एम नोइंग दिस फील्ड इज इजी, बट यू पीपल शुड फॉलो सर्टेन टाइप ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो जितने भी बच्चे फ्रेशर हैं या अटक रहे हैं, उनको पहले अपने बेस, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी चीजों पे वर्क करना है। और जितने टॉपिक इस एडिटोरियल एंड यू बैच में कराए जाएंगे, उन टॉपिक्स को इंडिविजुअल टॉपिक की तरह पहले सिर्फ पढ़ना है, समझना है। उसका कोर रिलेशन, अटैचमेंट विद अदर टॉपिक यू कैन डू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अपने आप को थोड़ा समय दो। क्या दो? समय दो। एक ही दिन में हर चीज को लर्न करने की कोशिश मत करो। क्लियर? तो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द बैच। इन दिस बैच वी आर कवरिंग द एडिटोरियल्स। उल्टा चलेंगे हम लोग, अक्टूबर 2020, और इस तरीके से पूरा 2020 कवर करेंगे और पूरा 2019 कवर करेंगे। एंड इफ द टाइम परमिट्स देन वी कैन आल्सो कवर दैट इज 2018। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, द टॉपिक्स विल गेट रिपीटेड, द टॉपिक्स विल गेट रिपीटेड, द फंडा विल रिमेन सेम। वॉट एवर यू लर्न यू कैन इंसर्ट इन योर 7 रजिस्टर्स और द फाइल्स, टॉपिक वाइज, इंडेक्स वाइज। और न्यूज़पेपर में भी जब उससे रिलेटेड कुछ आएगा तो हम उसको क्या करेंगे? इंप्लीमेंट। ये 7 रजिस्टर अकॉर्डिंग टू पेपर है। 2 रजिस्टर फॉर पेपर 1, 2 रजिस्टर फॉर पेपर 2, 2 रजिस्टर फॉर पेपर 3 एंड देन 1 रजिस्टर फॉर पेपर 4। पेपर 1 के रजिस्टर पहला नंबर बनेगा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, दूसरा रजिस्टर बनेगा सोशल इश्यूज एंड हिस्ट्री एंड कल्चर, तीसरा रजिस्टर बनेगा गवर्नेंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, चौथा रजिस्टर बनेगा आईआर एंड आईओ, यही मैंने उस दिन भी बताया था पहली क्लास ऑफ न्यूज़पेपर में। देन 5th रजिस्टर बनेगा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू, then internal security and science and tech, and then ethics and miscellaneous. This is a 7 register approach in which you can insert that topic. Editorial and you is having very lengthy booklet. 1 to 15 days booklet is about 90 pages, and in 90 pages I can tell you the summary of the topics. So suppose पहला topic आ गया disaster, तो I can tell you the mind map approach कि what exactly is a disaster and other things, and then tell you about the editorial. After the class, what you understood through mind map and the reading of the handouts in the form of editorial and you, इनकी summary बना के you can put in any register. तो जो मैं समझूंगा मैं उसी को summary बना के लिखूंगा, and then you can left with 1 page, उसी के बीच में एक पेज डाल के छोड़ देना। Now after some time again in the newspaper batch, this is editorial batch, newspaper batch में फिर से कुछ disaster आया, and I can provide again some additional point, उसके नीचे jot down करते चले जाना। Then I can give you the question about disaster, 2-3 तरह के मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो उसी के नीचे लिख लेना, and then write the answer with your pencil, take a clip, upload over the Aspire website under the question answer session, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा वो वेबसाइट पर भी होंगे और वही आपको वहां पर अपलोड कर देना है। And when your disaster will become very strong, then I can tell now solve the 10-year paper. We can open the 10-year paper, it is on the Aspire website. Aspire website पर जब आप मेंस के सेक्शन में जाओगे तो वहां प्रीवियस ईयर पेपर आएंगे, पेपर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा डिजास्टर का, और 2013 में पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2013 टू 2019 ऑल द क्वेश्चन ऑफ डिजास्टर वहां पर मिलेंगे। फिर हम सारे डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे? डिस्कस। आप पूछ सकते हो सर ये क्वेश्चन आया था कैसे लिखना है। डन डन। तो ये बैच किस चीज पर वर्क करेगा? ये बैच वर्क करेगा एडिटोरियल्स फ्रॉम 2 न्यूज़पेपर, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। देन these editorials and their analysis as per paper 1, 2, 3 and 4. These editorials sometime providing some question for PT. मैं फिर बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन PT के नहीं होंगे, some question, जैसे सल क्वेश्चन आया, the monsoon, at the time of monsoon what is the temperature profile of the Indian Ocean. दूसरा था for monsoon which month temperature we are including, January to March or March to May.
तो ये क्वेश्चन, ये एडिटोरियल हमारा हिंदू में आया था 2018 में, और इसके मैंने एविडेंस भी दिए आपको कि 2018 में एक आर्टिकल आया था रिगार्डिंग द टेम्परेचर एंड द सैलिनिटी प्रोफाइल ऑफ द इंडियन ओशन एंड देयर इंपैक्ट ओवर मॉनसून, विदाउट चेंजिंग अ स्टेटमेंट। ऐसी वो स्टेटमेंट उठा के उन्होंने डाल दी पेपर के अंदर। तो हर साल एडिटोरियल से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो एडिटोरियल 3 साल के होते हैं, तो मुझे भी नहीं पता किस एडिटोरियल से क्वेश्चन आएगा, बट ऑल दिस एडिटोरियल्स आर इंपॉर्टेंट, but 90% these editorials are important for mains and interview. Only 10 to 15% they are important for PT, but yes, that 10% also matters. अगर 10 क्वेश्चन भी एडिटोरियल से आ गए तो 20 मार्क्स आ जाते हैं सीधे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और यूपीएससी इज ए टफ एग्जामिनेशन, इसलिए टफ है कि इतना सारा पढ़ने के बाद दे आस्क 100 क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ गए? तो दे आर नॉट आस्किंग 100 क्वेश्चन फ्रॉम वन बुक, दे आर आस्किंग 100 क्वेश्चन फ्रॉम 20 बुक्स, इसलिए वो हार्ड है थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसके अंदर हम योजना करेंगे। योजना के अंदर भी हम उल्टा भागेंगे, पहले हम जनवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक की योजना करेंगे। तो अगली क्लास में सबके पास जनवरी 2020 से योजना होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर बैच के अंदर हम अक्टूबर से करेंगे, लेकिन इस बैच के अंदर हम अक्टूबर से पहले की करेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो वी आर डूइंग, इसलिए दोनों बैच एक दूसरे की क्या है, फ्रेंड्स, और वी कैन से ब्रदर्स, और इसलिए दोनों बैच हर बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए फॉर देयर ओन कंटिन्यूटी। फिर योजना के अंदर हम थीम वाइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थीम वाइज। जैसे जनवरी 2020 की योजना क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, तो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर पीटी आल्सो एंड मेंस आल्सो। और हम कोशिश करेंगे कि हर महीने, जैसे हमारी टोटल 12 क्लासेस हैं, तो हर महीने वी कैन कंप्लीट अराउंड 8 योजना, तो हम 8 से 9 योजना एक महीने में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि दिस बैच विल रन द होल नवंबर, होल दिसंबर एंड सम पार्ट ऑफ जनवरी। क्लियर? लेकिन जब जनवरी तक आएंगे तो जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं अक्टूबर से लेकर पीछे तक, तो 2018 वाला बचेगा। तो अगर मोहित यहाँ पर मेंस लिखेगा तो मोहित को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेंस के अंदर वो 1.5 ईयर की कवरेज लेंगे, और जनवरी 2019 तक हम नवंबर दिसंबर तक पूरा कर देंगे, ताकि उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचे। तो जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं वो मेंस लिखें, बाकी लोग इस बैच को कंप्लीट कर लें। क्या मेरी बात समझ गए सब लोग अच्छे से? डू यू अंडरस्टैंड? तो वी आर कवरिंग ऑल दिस थिंग इन दिस बैच। तो लेट्स स्टार्ट दिस बैच विद द अक्टूबर। इस बैच में अगर किसी को एडमिशन लेना होगा, यू कैन डू द ऑनलाइन एडमिशन। आप सिर्फ किस पर जाएंगे? एस्पायर की वेबसाइट पर और यूपीएससी कोर्सेज पर, वो मैं आखिर में सिखाऊंगा, या अभी सिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो व्हेन यू ओपन दिस, दैट इज अ वेबसाइट। तो हमने इसके अंदर बहुत सारी चीजें अपलोड कर दी हैं ऑलरेडी। जैसे उस दिन हमने आपसे बोला मेंस, जैसे अब यूपीएससी कोर्सेज खोलोगे आप, तो यूपीएससी कोर्सेज के अंदर मेंस के अंदर दिस इज अ टॉपिक, एडिटोरियल एंड यू क्यूआईपी क्लासेस दिख रहा है आपको। तो दिस इज अ मॉड्यूल, यहाँ पर जाके आप एडमिशन ले सकते हो। ऑलरेडी हमने इसके अंदर आपको डिस्काउंट दे दिया है, यू कैन एनरोल। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा इसका। और जो डेली दैट इज हमने क्वेश्चन आंसर डाले हैं, ये रहे आपके वो। तो ये 4 क्वेश्चन हमने डाले थे 31 को, तो कल तो छुट्टी थी, संडे इज नो, 6 दिन ही एक्सरसाइज हुआ करेगा, मंडे टू सैटरडे। तो ये सैटरडे के क्वेश्चंस हैं। डिस्कस द चेंजिंग रिलेशन ऑफ इंडियन यूएसए स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ 2+2 डायलॉग एंड इट्स इंपैक्ट। तो हमारे सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट होते हैं, एनालिटिकल, और ये सॉल्व करने हैं। अभी तक किसी बच्चे ने पोस्ट नहीं करा है। अगर मैं खोलूं किसी ने पोस्ट किया है तो मुझे पता चलेगा किसी ने भी पोस्ट, किसी ने भी नहीं लिखा ना आंसर, जबकि मैंने उस दिन बोला था लिख लेना। किसी ने लिखा आंसर? डाला है? किसने डाला है? हाँ ठीक है, रिया ने डाल दिया है, ठीक है। सरप्रिया ने डाल दिया है। सरप्रिया तेरा आंसर है ना? हाँ ठीक है, हाँ हाँ तेरा ही आंसर खुला हुआ है, ये देखिए तेरा आंसर है। तो मैं ऐसे डिस्कस करूंगा सबके आंसर, इसलिए मुझे चाहिए। अब देखो टेक्नोलॉजी हो गया तो थोड़ा यूज करते हैं ना पॉजिटिवली इस टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पर हमने उस दिन 4 क्वेश्चन दे दिए थे सब बच्चों को, और ये 4 क्वेश्चन सबको यूज करने आने चाहिए। तो हमने उस दिन क्वेश्चन दिया था यूएसए, डू यू थिंक एजुकेशन इज अ वाइटल टूल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, हाईलाइट सम ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर वुमेन एजुकेशन इन इंडिया।
critically analyze the performance and impact of Right to Education Act in India, suggest some of the measures to enhance the quality of elementary education in India. तो हर क्वेश्चन में आपका व्यू हम जरूर जानेंगे कि आप क्या व्यू देते हैं. And then why people participation in the political process is a must for Jammu Kashmir stability and growth. Elaborate कि लोगों का पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है अगर हमें उनको वो करना है, डेवलप करना है. तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर लीजिए. और मोहित आप ये सारे क्वेश्चन लिखते रहना, ठीक है. चाहे आपका मेंस है तब भी आप इस बैच के बाद ये सारे क्वेश्चनों को लिखोगे. 6 के 6 दिन ही अपलोड होंगे, 5 क्वेश्चन ये जरूर लिखोगे. और ये पांचों क्वेश्चन मैं जितने भी डालूंगा सब 10 नंबर या 15 नंबर के डालूंगा. और तुम सिर्फ ट्राई करना कि तुम पूरा आंसर लिख के डालो मोहित. क्लियर? तो इससे कंटेम्परेरी टॉपिक्स पूरे होते रहेंगे. ठीक है, चलो. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हमने यहाँ इंडेक्सेशन दिया है ताकि आपको आखिरी में मदद मिले कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है. तो शुरू में हम पहले मैं बता देता हूँ इसमें कौन से 5 स्टार टॉपिक्स हैं जिसको आप हमेशा अच्छे से याद रखोगे. पहला, इंटरनेशनल रिलेशन, टाइम टू शिफ्ट फोकस टू मैरीटाइम स्फीयर, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक. In this I can deal with the IR in the maritime sphere. Then Indian polity is one that's a language enough. It is not that much important. Clear? तो 5 स्टार वाला फर्स्ट है, सेकंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन weighing the cost on COVID-19 वैक्सीन, it is not that much important. बस COVID-19 वैक्सीन का पता होना चाहिए. जैसे इस बार पीटी में क्वेश्चन आया वैक्सीन के क्या क्या यूज होते हैं, क्या वैक्सीन लगाने से एलर्जी हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है. तो इस बार ऐसे 3 क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट आए थे वैक्सीन के ऊपर. जैसे एक मीजल और रुबेला के ऊपर आया था. तो याद रखना जितने भी वैक्सीन होती हैं डीबीटी जो हम पढ़ते हैं अपना मिशन इंद्रधनुष, वो मैक्सिमम प्रिवेंशन के लिए होती है, क्योर के लिए नहीं होती है. वैक्सीन किसके लिए होती है? प्रिवेंशन के लिए. तो ये सब हमें पता होना चाहिए. तो ये टॉपिक मेनली पीटी के लिए, मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन फोर्थ आर्टिकल, रेलेवेंस ऑफ गांधीज्म टुडे, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट. ये एथिक्स में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द गांधीज्म दैट इज टुडे. Then third में environment, China climate commitment, how significant it is for the planet and India it is only the attachment. तो कुछ आर्टिकल ये होते हैं कि हम उसके अंदर डालें. जैसे कि क्वेश्चन इंडिया चाइना क्लाइमेट पे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन क्लाइमेट चेंज. तो उसमें हम इसको एग्जाम्पल की तरह डाल सकते हैं. किसकी तरह डाल सकते हैं? एग्जाम्पल की तरह. तो इसको हम जो पढ़ेंगे वो हम 2 जगह यूज कर सकते हैं. जैसे क्वेश्चन आ गया कि डिस्कस इन द रिसेंट टाइम द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इंडिया एंड चाइना फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरेस्ट. तो डाइवर्जेंस के अंदर तो बहुत सारे हैं, पाकिस्तान, न्यूक्लियर इशू, इंडियन ओशन इशू, सिक्योरिटी काउंसिल इशू, ये सब डाइवर्जेंस में है चाइना के साथ. मतलब जहां पर हम दोनों अपोजिशन में खड़े हैं. लेकिन क्लाइमेट चेंज क्या है हमारा? कन्वर्जेंस में. तो उसके अंदर डाल सकते हैं. अब मेरी बात समझ रहे हो ना? तो यूपीएससी की पढ़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग है. पहले आपको 360 डिग्री बेस बनाना है मेरे साथ पीटी कम मेंस करके बैच. अगर आप वो नहीं करोगे, लेकिन एक बार आपने अगर वो कर लिया अच्छे से, तो उसके बाद आप चीजों को समझ भी सकते हो, उसको अप्लाई भी कर सकते हो. फिर क्वेश्चन है पाथवे टू डाइवर्सिटी, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट. देन व्हाट्सएप एंड लीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. ये सीधा क्वेश्चन आ जाएगा एज अ 5 स्टार कि व्हाट्सएप पे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लीकेजेस पे इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या पार्ट है. क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में एक टॉपिक है, इसलिए बार बार बोलता हूँ सिलेबस पता होना चाहिए. तो हमारा एक टॉपिक है टेलीकम्युनिकेशन एंड देयर रोल इन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री. तो ये उसका पार्ट है. फिर द फ्यूचर ऑफ जीएसटी हैंग इन द बैलेंस, जीएसटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. अब जो भी बच्चा करेगा उसको मैं बेस बना दूंगा जीएसटी के अंदर. लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स का बैच करेंगे तब हम अच्छे से और पढ़ेंगे व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्सेस, हाउ इवोल्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, मोड वेट, सैन वेट, सेंट्रलाइज वेट, देन हाउ जीएसटी इवोल्व्ड. अब ये उस समय पता चलेगा. अभी हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे अच्छे से? जीएसटी. लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली कब पढ़ेंगे? जब हमारा इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट होगा इन द मंथ ऑफ फरवरी 2021. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं अच्छे से? फिर इसके बाद अनदर टॉपिक, स्ट्रॉ मैनेजमेंट मैकेनिज्म टू कर्ब स्टबल बर्निंग. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जांपल की तरह यूज होगा ये कि भारत में हम सबको पता है दिल्ली में फार्मर्स आसपास के क्या जलाते हैं? स्टबल. स्टबल मतलब स्ट्रॉ, भूसा जिसे हिंदी में बोलते हैं. उससे क्या होता है? पॉल्यूशन. तो उसके लिए स्ट्रेटेजी है. फिर इसके बाद आता है हमारा ऑन द क्वेड डिफाइन द आइडिया चार्ट अ पाथ. दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर आईआर. तो ये 5 स्टार हो गया. री इमेजिनिंग एजुकेशन इन इंडिया एट द रेट ऑफ 100. ये क्वेश्चन हो गया एसए का कि ये टॉपिक पूरा ऐसे कैसे एसए में आता है. एडिटोरियल यूके ही टॉपिक वो एसए में उठा के पूछ लेते हैं. तो उन्होंने पूछा कि भारत के एजुकेशन को हम री इमेजिन कर रहे हैं. तो री इमेजिनिंग एजुकेशन इन इंडिया एट 100 कि हाउ वी आर री इमेजिनिंग द इंडिया रिगार्डिंग द एजुकेशन एट द रेट ऑफ 100. फिर इंडिया नीड्स अ रेनबो रिकवरी प्लान. तो इंडिया को क्या एक रेनबो रिकवरी प्लान चाहिए. 5 स्टार. इट इज हाईली इंपॉर्टेंट. अ टेल ऑफ मैंग्रोव माइग्रेशन, हाईली इंपॉर्टेंट पीटी कम मेंस. तो ऐसे में हर आर्टिकल का आपके बारे में बता दूंगा. और अगर आप देखोगे तो 15 दिन के अंदर कितने एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट थे? 37.
और हर एडिटोरियल के पहले इंडेक्स में हमने उसका पेपर जरूर दिया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पेपर टू पेपर 3। और अगर आप देखोगे तो 99% एडिटोरियल पेपर टू पेपर 3 से ही कंटेक्स्ट में आते हैं, सिर्फ 1% पेपर 1 और एथिक्स के लिए आता है। इसलिए पेपर 2 पेपर 3 90% 2 साल के करंट अफेयर्स से होता है, वॉट एवर द टॉपिक में भी। क्लियर? इसलिए पेपर 2 पेपर 3 अगर मेंस के लिए अच्छे से करना है, यू शुड हैव द कमांड ऑन द 3 इयर्स ऑफ न्यूज़पेपर व्हिच एस्पायर इज प्रोवाइडिंग टू यू। क्योंकि एस्पायर अपनी सक्सेस को आपकी सक्सेस के साथ जोड़ता है, आप सक्सेसफुल हो तो हम सक्सेसफुल हैं, इसलिए हम इस पर मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, टाइम टू शिफ्ट फोकस टू द मैरीटाइम स्फीयर। तो ये टाइम है कि हम अपने मैरीटाइम स्फीयर पर पुश करें। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, तो थोड़ा समझिएगा अच्छे से। क्लियर? मैरीटाइम स्फीयर, पेज खोल लो, बनाते रहो नोट साथ साथ। यू कैन वर्क विद मी, व्हेन आई एम सेइंग समथिंग यू कैन आल्सो फॉलो मी। द क्वेश्चन इज अबाउट द मैरीटाइम स्फीयर, तो वी कैन डिवोट 2 to 3 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन। मैरीटाइम स्फीयर का मतलब होता है ओशियन। मैरीटाइम स्फीयर का मतलब क्या होता है? ओशन। एंड दिस टॉपिक इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर पेपर नंबर 2 IR एज वेल एज पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी। तो व्हेन एवर मैरीटाइम स्फीयर आता है तो आप सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव याद रखेंगे फॉर द इंट्रोडक्शन। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मैं समझता हूं कि बोर्ड का पूरा कवरेज हो पा रहा होगा। हो पा रहा है? पूरा डिजिटल बोर्ड दिख रहा है आपको? यहां तक दिख रहा है ना? तो सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखना है। Under this historical perspective, we can link our own Samudra Manthan, which talks about significance of ocean. क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? Then we can talk in 19th century, the superpower is that power who is having the command on the ocean. तो 19th century में सुपर पावर वही होती थी जिसकी कमांड किस पर होती थी? ओशन पर। भारत के अंदर चोला एम्पायर was the major power only because they are having the command over the ocean. इंट्रोडक्शन में इतना लिखना काफी होता है कि समुद्र मंथन में ओशन का सिग्निफिकेंस दिखाया। यूके 19th सेंचुरी में मेजर पावर था बिकॉज ऑफ ओशन। और चोला एम्पायर जो भारत में था, अब जिनको नहीं पता वो रट्टा मार लो कि चोला एम्पायर जो साउथ इंडिया में था वो मेजर एम्पायर इसलिए था बिकॉज ऑफ ओशंस। तो हमें सिग्निफिकेंस बताना है कि ओशन का क्या है। दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच आर टॉकिंग अबाउट व्हाई ओशंस आर इंपॉर्टेंट। फिर तुरंत एक ट्रांजिशन लाइन देंगे कि इन 21st सेंचुरी आल्सो इफ एनी कंट्री वांट टू बिकम अ सुपर पावर और द रीजनल पावर, दे शुड कमांड ओवर द ओशन। दे शुड कमांड ओवर द ओशन। तो 21st सेंचुरी में अगर कोई भी बनना चाहता है तो उसको भी ओशन पे ही कमांड देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ गए? इसका एविडेंस देना बहुत जरूरी है। दैट चाइना इनिशियली मेक road initiative through Silk Route, but after some time they realized that ocean is also important, that's why they are coming with maritime Silk Route, and now their policy is known as OBOR, one belt one road। मैं फिर से बोलता हूं, अगर मैरीटाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता तो चाइना ने स्टार्टिंग में अपनी पॉलिसी स्टार्ट करी एक्सपेंशनिस्ट बाय द नेम ऑफ रोड। रोड मींस ओनली कंसंट्रेट ऑन रिवाइवल ऑफ सिल्क रूट, बिलोंग टू द रोड मूविंग फ्रॉम एशिया टू यूरेशिया टू यूरोप। हाँ या ना? लेकिन उन्होंने देखा कि ये सिर्फ रोड कामयाब नहीं है, ओशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने बाद में इसे OBOR बनाया। पहले सिंपल क्या था? बोलो OR, वन रोड। सिर्फ क्या था पहले? वन रोड, सिल्क इनिशिएटिव। उसको उन्होंने फिर क्या बना दिया? OBOR, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव थ्रू मैरीटाइम सिल्क रोड। ये एविडेंस हो गया। तो क्या सब बच्चे सीखे कैसे क्वेश्चन आंसर लिखे जाते हैं? पहले इंट्रोडक्शन में सिग्निफिकेंस बताओ। टॉपिक क्या है? बोलो मैरीटाइम स्फीयर, कि इंडिया शुड शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम लैंड टू मैरीटाइम ओशन, तो उसके ऊपर बताना है। डन? तो ये 2 पैराग्राफ हो गए। तो ये मेन हम आपको इसमें आंसर राइटिंग के तरीके बताएंगे, कैसे सीखना है। बेस बनवाएंगे 1 डे 1 आवर 2 न्यूज़पेपर बैच के अंदर। क्लियर? और यहां पर हम फंडे बताएंगे कि किस तरीके से चीजों को इवॉल्व करना है, और आप वो फंडे लिख लेंगे। जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे इट विल गो इनटू योर माइंड। आगे चलते हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में आ जाते हैं। इंडिया, यहां पर मैप बना दो इंडिया का बढ़िया सा। अगर पूरा बनाना नहीं आता है देन यू कैन मेक ओनली फ्रॉम गुजरात, और पूरा कोस्टल एरिया दिखा दो। ये तो हम दिखा ही सकते हैं,
इसे दिखाने में क्या है, और ऊपर ऐसे करके ऐसे बना दो। तो ये ट्रिक होती है कि व्हेन वी आर नॉट नोइंग हाउ टू मेक द मैप, हमें सिर्फ कोस्टल रीजन दिखाना है, तो सिर्फ भारत का गुजरात से स्टार्ट करो और वेस्ट बंगाल तक दिखा दो, बस इतना दिखा दो, इतना डायग्राम बनाया जा सकता है। क्लियर? यहाँ दिखा दो लक्षद्वीप और यहाँ दिखा दो अंडमान एंड निकोबार, ये दिखाना बहुत जरूरी है, और ये श्रीलंका। और यहाँ दिखा दो ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ और यहाँ दिखा दो स्मॉल कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इसके आगे करके ही लिख दो 7500 किलोमीटर ओशन बाउंड्री, 7500 मीटर ओशन बाउंड्री। क्लियर? इस साइड लिख दो रिच इन ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेस, और इस साइड लिख दो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। तो ये तरीका होता है 2 नंबर ज्यादा पाने का। दिस इज अ मेथड। मोहित, मजा आ रहा है बेटा? समझ गया बैच कैसे जाएगा मोहित? फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? बस, तो इस तरह से एक डायग्राम बना दो छोटा सा। तो व्हेन यू डेवलप दिस डायग्राम इज नोन एज ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। नीचे फिगर नंबर डालना बहुत जरूरी है। इंडियाज मैरीटाइम सिग्निफिकेंस। अब जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं वो इसके अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर अपने नेवल बेसिस वगैरह दिखा देंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं, मुद्रा पोर्ट विच इज नियर टू ग्वादार पोर्ट ऑफ चाइना, मुद्रा पोर्ट ऐसे दिखा देना। फिर यहाँ पर अपना दिखा दो गोवा मझगांव डॉक लिमिटेड, क्या दिखा दो, मझगांव डॉक लिमिटेड, जहां पर हमारी क्या बन रही है, क्रेविक, जिसे हम बोलते हैं आईएनएस तेग तरकश। फिर उसके बाद गोवा के ऊपर दिखा दो, सॉरी ऊपर दिखा दो मुंबई मझगांव डॉक लिमिटेड स्कॉर्पियन सबमरीन। फिर कोची दिखा दो केरला में, वहां लिखा दो आईएनएस विराट एंड विक्रांत, आईएनएस विराट एंड विक्रांत कोची में। क्या बन रहा है कोची के अंदर आईएनएस विराट विक्रांत, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। और यहां विशाखापट्टनम दिखा दो न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत एंड अर्धमान, कोची विराट। तो ये आपका मैप और इंटरेस्टिंग हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज अ मेथड टू मेक द मेन पार्ट ऑफ द ओशंस। अब हम इसके आगे आएंगे, थर्ड पार्ट, इंडियाज स्ट्रेटेजी। थर्ड पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, इंडियाज स्ट्रेटेजी। इंडिया स्ट्रेटेजी पहले हम करेंगे थ्रेट क्या है इंडिया का, थ्रेट, व्हाट इज द थ्रेट फॉर इंडिया। तो हम थ्रेट में 4 चीजों के बारे में बात बता देंगे। फर्स्ट, पाकिस्तान एंड देयर टर्बुलेंस इन अरेबियन सी, एग्जाम्पल मुंबई टेररिस्ट अटैक। तो यू शुड ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान इज हाईली एक्टिव इन द अरेबियन सी एंड इट रिजल्टिंग इनटू अटैक, सॉरी दैट इज मुंबई टेररिस्ट अटैक ओनली थ्रू वाटर। तो पहला थ्रेट हमें किसका है, पाकिस्तान का। सेकेंड थ्रेट चाइना, चाइना इज मूविंग बोथ इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। इन बे ऑफ बंगाल दैट इज अ कुक फायू पोर्ट ऑफ म्यांमार। तो बे ऑफ बंगाल में चाइना म्यांमार का एक पोर्ट डेवलप कर रहा है जिसका नाम क्या है, कुक फायू, KUPHAYU, कुक फायू पोर्ट का क्या नाम है, कुक फायू पोर्ट। ये सब एडिटोरियल के अंदर मिलेगा लेकिन यहां लिख लो। और पाकिस्तान का क्या डेवलप कर रहा है, ग्वादार, ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान नियर टू कराची, ग्वादार, GWADAR, ग्वादार। और श्रीलंका का कौन सा पोर्ट डेवलप कर रहा है, हम्बनतोता, HAMBANTOTTA, हम्बनतोता। घर जाके एटलस खोल के तीनों लोकेशन देखोगे साउथ एशिया के मैप में, क्लियर, तीनों हैं। म्यांमार का मैप खोलोगे ऑरेंज लॉन्गमैन, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में पाकिस्तान और श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर साफ साफ साउथ में दिखेगा हम्बनतोता। इससे आपकी मेमोरी और क्या हो जाएगी, स्ट्रांग, क्योंकि आप एटलस के अंदर देख लोगे। तो एटलस को रिकमेंड करना बहुत जरूरी है। अभी नहीं करा सकता क्योंकि बहुत सारे टॉपिक खत्म कराने हैं, डन। तो अभी आप खुद करोगे, डन। अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो भाई, मुंडी हिला के, मुंडी हिला के ऐसे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर हमने दे दिया चाइना का थ्रेट है भारत को, क्लियर। थर्ड है टेररिज्म का थ्रेट, किसका, टेररिज्म। और फोर्थ है पावर शिफ्ट, पावर शिफ्ट, कि सारे कंट्री ही इंडियन ओशन में आ रहे हैं, सारे कंट्री ही इंडियन ओशन में आ रहे हैं, लाइक यूएसए, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री ही ओशन में आ रहे हैं। जैसे बोलते हैं पावर शिफ्ट टुवर्ड्स मैराइन एरियाज, क्लियर। फिर इसके बाद बोलेंगे कि व्हाई मैरीटाइम थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। मैरीटाइम शिफ्ट, वर्ड क्या आएगा, मैरीटाइम शिफ्ट, कि व्हाई इंडियाज मैरीटाइम शिफ्ट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इंडिया मैरीटाइम शिफ्ट इज इंपॉर्टेंट।
तो हम इसको पास्ट के साथ बताएंगे कि 1971 लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश, तो हमें लिंक करना आना चाहिए। 1971 लिबरेशन वॉर रिगार्डिंग बांग्लादेश, इंडिया वॉन ओनली बिकॉज ऑफ नेवल सुपरमेसी। तो बांग्लादेश के ऊपर हम इसलिए जीत हासिल कर पाए थे बिकॉज ऑफ नेवल सुपरमेसी। इन द सेम मैनर, अब इसको प्रेजेंट से लिंक कर देंगे, तो ये हम बच्चे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखेंगे, ये मेरी स्किल्स है लेकिन मैं आपको डिलीवर करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पास्ट के एविडेंस से प्रेजेंट को कलेक्ट करना है, तभी अच्छे नंबर मिलते हैं। कि वी controlled Bangladesh or we liberated Bangladesh because of marine efforts. In the same manner, when presently India affected by 2.5 front war, 2.5 front war, 2.5 का मतलब होता है चाइना, पाकिस्तान एंड हाफ थ्रेट ऑफ टेररिज्म, क्योंकि टेररिज्म कोई कंट्री नहीं है, इसलिए इसको हम 2.5 फ्रंट थ्रेट बोलते हैं। तो भारत को इस समय कौन सी थ्रेट है? 2.5 फ्रंट थ्रेट। तो when India is guided by the 2.5 front threat plus boundary dispute with both Pakistan and China, it is a time that India should make their navy very strong. अब समझे कैसे लाइन लिखनी चाहिए, क्योंकि मैरीटाइम शिफ्ट की बात की जा रही है। इट इज द टाइम दैट इंडिया शुड वर्क देयर नेवी वेरी स्ट्रांग। व्हाई? नेवी हमारे 3-4 काम करेगी। पहला काम, ओनली नेवी हैज द पावर टू लॉन्च द मिसाइल एज अ थर्ड फ्रंटल अटैक आफ्टर आर्मी एंड एयरफोर्स। तो नेवी से हम फ्रंटल अटैक कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ ट्रूप्स, काउंटर द नेवी ऑफ चाइना हु इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, क्योंकि टेरेन चाइना से पाकिस्तान वाली डिफिकल्ट है, तो इंडिया चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर कर सकता है थ्रू नेवी। तो चाइना का जो भी शिप, इसे मूवी की तरह समझो, चाइना का जो भी शिप क्या लेके आएगा? बोलो ऑयल, टेक्नोलॉजी, ट्रूप्स, उसको हम समुद्र में ही मार गिराएंगे। तो वी कैन कट ऑफ द सप्लाई, वी कैन कट ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायमेंशन टू द पाकिस्तान। Then the same navy is protecting our borders, ये तो हो गया इंडिया और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में। क्या मेरी बात समझ गए? इंडिया और पाकिस्तान चाइना के कंटेक्स्ट में। और बाकी कंटेक्स्ट लिख लो, अफगानिस्तान एंगल लिख दो एक, कि स्ट्रॉन्ग नेवी इज आल्सो हेल्पफुल फॉर अफगानिस्तान एंड हाउ इंडिया कैन कंट्रोल her position in Afghanistan, which is heart of Asia. Yes or no? अब अफगानिस्तान में सपोर्ट कैसे करेंगे? बोलो वाया ईरान थ्रू चाबहार पोर्ट। विच पोर्ट? चाबहार। चीजें समझ में आ रही होंगी अब आपको। तो चाबहार पोर्ट के थ्रू वी कैन सपोर्ट अफगानिस्तान एज वेल एज सेंट्रल एशिया। थर्ड पॉइंट लिख दो कि मैरीटाइम स्फीयर फोकस शुड बी शिफ्ट बिकॉज ऑफ इंडियाज मर्चेंट शिपिंग स्ट्रेंथ और कमर्शियल शिपिंग। इंडिया का 90% ट्रेड किसके थ्रू होता है? ओशन के थ्रू। इंडिया 90% ट्रेड इज मूविंग थ्रू ओशन। एंड व्हेन इंडियाज 90% ट्रेड इज मूविंग थ्रू ओशंस, द प्रोटेक्शन ऑफ ओशन लेन्स अगेंस्ट पायरेसी इज पॉसिबल ओनली थ्रू स्ट्रॉन्ग नेवी। क्लियर? और लास्ट लिख दो, इंडिया 21st सेंचुरी स्ट्रेटजी सागर, SAGAR, सागर। तो भारत की इंडियन ओशन पॉलिसी का नाम क्या है? सागर। और सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो स्ट्रॉन्ग नेवी इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज ऑन पॉलिसी by the name of security and growth for all in the region and the protection of small island country. Protection of small island country. Mainly Mauritius, Seychelles, Maldives, Sri Lanka. तो जो भी फ्रेशर है या ओल्ड है सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं। यस और नो? और सबसे आखिरी में हम एविडेंस देंगे कोविड का, कि द सेम मैराइन फोर्स, द सेम
Marine force strategy is important for HADAR exercise. HADAR, HADAR, HADAR. HADAR का मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिडक्शन थ्रू दिस एक्सरसाइज, HADAR एक्सरसाइज. तो HADAR एक्सरसाइज के अंदर एग्जांपल दे दो, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, जहां पर इंडिया ने इवैक्यूएशन किया फ्रॉम मालदीव्स. तो मैरीटाइम रोल इज आल्सो इंक्रीजिंग फॉर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी. इसी को क्या बोलते हैं हम? सॉफ्ट पावर. कि चाहे वो इंडियंस हो चाहे कोई भी नेशनल के हो, वी आर प्रोवाइडिंग देम द बेसिक गुड्स, वाटर, फूड, इवन वी कैन इवैक्यूएट आवर ओन पीपल. इसी को बोलते हैं HADAR, हदर. कैपिटल लेटर में लिखना, हदर एक्सरसाइज, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज बाय द इंडियन नेवी. और लास्ट में लिख दो ब्लू वाटर नेवी. इंडिया अगर ब्लू वाटर नेवी बनना चाहता है, ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है कि आवर नेवी कैन डोमिनेट इन द इंडियन ओशन. तो इफ इंडिया वांट टू बिकम अ ब्लू वाटर नेवी इन द इंडियन ओशन, वी शुड फोकस मोर ऑन मैरीटाइम स्फीयर. मैरीटाइम स्फीयर मतलब ओशनिक स्फीयर. वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे? हम सबको पता है इंडिया का इंटरेस्ट इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन दोनों में है. इसी को बोलते हैं इंडो पैसिफिक. क्या बोलते हैं? इंडो पैसिफिक. तो हम लिखेंगे इफ इंडिया रियली वांट टू यूटिलाइज द इंडो पैसिफिक रीजन and to become a major geopolitical power and to make a and want to become a major geopolitical power, India can work upon maritime sphere. Therefore recently Ministry of Economic Affairs inaugurated Indo-Pacific Division. India participation in the quadrilateral meeting. With US. तो एक ग्रुप बना है जो चाइना को काउंटर कर रहा है, दैट इज नोन एज क्वाड, QUAD. तो इंडिया पार्टिसिपेशन इन द क्वाड्रिलेटरल मीटिंग विद जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया. एंड पार्टिसिपेशन इन द न्यू नेवल एक्सरसाइजेज लाइक मालाबार. कंट्री के नाम लिखने जरूरी हैं, लाइक मालाबार विद US, जापान. ऑसी इंडेक्स विद ऑस्ट्रेलिया, AUSI. ऑसी इंडेक्स विद ऑस्ट्रेलिया. ऑसी इंडेक्स विद ऑस्ट्रेलिया. स्लाइनेक्स विद श्रीलंका, SLI. स्लाइनेक्स विद श्रीलंका. एनक्यूवरिन विद मालदीव्स, एनक्यूवरिन, ENKU, एनक्यूवरिन. Falcon, FALCON, Falcon with UAE, etc. are the evidence towards maritime shift and focus. जय हिंद. तो टोटल 10 मिनट में हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक कर लिया कि why there is a need regarding focus with proper history, evidences, Pakistan China threat as a major focus, and then other areas like Indian Ocean region, other exercises, Central Asia and Afghanistan, piracy. बस ऐसे 4-5 पॉइंट देने पड़ते हैं, then you will get very good marks. रोहन कैसे लगा? Really good. दिमाग में घुसा? Correlating everything, sir. हाँ sir. बस शुभम बेटा पहली बार पढ़ रहा है तो चीजें बस याद रखना, यू आर एजुकेटेड, 18+ हो. थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आया ना सर ने कैसे समझाया चीजों को? क्या पढ़ा है मैंने शुभम? हाँ, कि इंडिया आर्मी और एयरफोर्स से ज्यादा इंडिया नेवी पे फोकस क्यों करे, ये क्वेश्चन इसका था कि व्हाई वी शुड फोकस अपॉन मैरीटाइम रीजन. ठीक है बेटा, शाबाश. सरप्रिया तेरे को समझ में आया अच्छे से बेटा?
ठीक है, अब ये जो टॉपिक पढ़ा है इसे हम एडिटोरियल में देख लेते हैं। तो एवरीबॉडी कैन ओपन द पेज, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 अपने अपने डॉक्यूमेंट में देखो सब लोग, या मेरे स्क्रीन पे तो चढ़ ही रहा है जूम पर, आप देख सकते हैं वहां पर। Time to shift focus to the maritime sphere. Context: this article talk about the need for India to shift the focus from continental studies to maritime sphere. यही हमने समझाया ना, बस इसमें एग्जाम्पल कम है तो मैंने वो अपनी तरफ से जुड़वा दिए। तो एडिटोरियल में एक तो एडिटोरियल में लिखा है वो, प्लस जो मैं जानता हूँ वो, दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। फिर इंडिया इज अ कंट्री दैट इज ट्रेडिशनली ऑब्सेस्ड विद द कॉन्टिनेंटल अप्रोच टू वॉर एंड पीस। However, India might have reached a dead end in terms of its grand strategic plan in continental sphere. तो ये एडिटोरियल की लाइंस हैं, पहले हम खुद नोट्स बना देते हैं, अब मैं आपको नोट्स बने बनाए दे रहा हूँ। फिर चाइना पाकिस्तान का एंगल दे दिया जो मैंने ऑलरेडी समझाया, अफगानिस्तान का एंगल दे दिया जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेंट्रल एशिया दे दिया। स्टेप्स क्या है? डील विद पाकिस्तान, डीजीएमओ हॉटलाइन, लेकिन अभी मेरा मेन क्या है स्ट्रेटेजी? मैरीटाइम। बस इसमें एडिटोरियल में इतना ही दिया है और मैंने इसको आपको इससे ज्यादा बता दिया है। इसमें मेन पार्ट है ये, फोकस ऑन इंडो पैसिफिक। नाउ दिस इज अ यूनिक पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। तो ये हमने एक पार्ट लेके समझाया, हमने इसको और कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया, एडिटोरियल में सिर्फ थोड़ा सा ही दे रखा है। While there is a little any country can do to help India in its continental contextations, there is a growing great power interest in the maritime sphere, especially with the arrival of the concept Indo-Pacific. तो Indo-Pacific के समय maritime shift बड़ा important हो जाता है। Great power remain even more interested in the maritime sphere. The interest has grown substantially since the term Indo-Pacific was coined. Germany recently released its Indo-Pacific guidelines. तो सारी country release कर रही हैं। Earlier it was USA, pivot towards Asia. Then it was China, OB, OR. Then it is India, Sagar. India ने कौन सा दिया? Sagar. Then it was Japan, Afro-Asia corridor. But now it is Italy, France, Germany. All are coming to Indo-Pacific. That's why India should focus upon maritime स्फेयर। और यही क्वेश्चन यूपीएससी देखना इस बार पूछेगा, जब पूछेगा मुंह पे स्माइल आ जाएगी कि सर ने पढ़ाया था पहले दिन एडिटोरियल क्लास के अंदर इंडो पैसिफिक रीजन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ वी कैन शिफ्ट फ्रॉम कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजीज टू मैरीटाइम स्ट्रेटजीज। क्लियर? इसी के लिए हमारा क्या काम करता है बोलो? इंडियाज नेवल डॉक्ट्राइन। ये जो मैंने पढ़ा है क्या है? इंडियाज नेवल डॉक्ट्राइन। लेकिन ये डायग्राम जरूर बनाना है, ये और बच्चे नहीं बनाएंगे। तो एस्पायर के बच्चे 450 प्लस जैसे मार्क्स लाते हैं बिकॉज ऑफ दिस यूनिक थिंग्स। यू कैन ड्रॉ द diagrams. Then New Delhi, that is a must use its Indo-Pacific engagements to discuss Beijing from, there is a salami slicing Indian territory in the high Himalayas. Then it would provide India unique opportunity to enhance its influence and potential checkmate the Chinese ambition. ये सब मैं बता चुका हूँ, ये language है खाली कि to counter China. Also maritime space is a lot more important to China than engaging in opportunistic land grab attempts owing to massive Chinese trade that happens via oceanic routes and the complex geopolitics. तो इंडिया उसको मात दे सकता है because Chinese trade are also moving from oceans, तो हम उसको threat कर सकते हैं। A revitalize India's maritime grand strategy may or may not affect China activities in the Himalayas, but will certainly provide lot of space in the region. India must ideate on the current and future maritime challenges, consolidate its military and non-military tool. तो हमें दोनों टूल का इस्तेमाल करना है इंडियन ओशन में, मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री। engage its strategic partners and publish a comprehensive vision document on the Indo-Pacific. India must also consider appointing a special envoy for Indo-Pacific affairs. ये इंपॉर्टेंट है। और वे फॉरवर्ड में रिसेंटली MEA ओपन अ इंडो पैसिफिक डिवीजन विच इज अ गुड बिगनिंग। जय हिंद। तो पहले टॉपिक ऑफ एडिटोरियल इज ओवर विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। नाउ सेकंड टॉपिक, इट इज द टॉपिक ऑफ पेपर नंबर 2, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस में आएगा। इज वन लैंग्वेज इज एनफ? तो ये हम इसमें से पढ़ेंगे, इसके लिए नो माइंड मैप। तो वी कैन डू दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ editorial and you only.